Good morning, students. Last class we have completed our 6.2 exercise for inequality, how to draw the graph in XY plane. So today we will discuss about how we will draw more than one inequality in one particular graph. That means if we have one XY plane, and in this plane we have to draw more than one inequality. That means maybe two inequality, maybe three inequality if given, then how we can draw in one diagram. Okay, so that means today we will discuss about exercise number 6.3. okay, so let's see what are the question given in 6.3. Question number 6.3. okay, this is 6.3, and solve the following system of inequality graphically. Okay, here you see here two inequality given: x greater than equal to 3, y less than y greater than is equal to 2. Okay, in last exercise in 6.2 we have solved just like one inequality if given, then how to solve. Like this we have done, just like this. You'll see this type of problems we have seen in last class 6.2. we have done like this single inequality. Okay, but now we have to go for double or triple inequality if given, then how to draw the graph of this inequality. Here you see how many given: 1 2 3 4 5 inequality given here. 1 2 3 4 5. Okay, so like this one, like this problems we will solve now. Okay, so let's see which one we will solve. Question number we'll try to solve question number 10. okay, here see how many inequality given: 1 2 3 4 inequality given. okay, so if we'll do this problem, then you can solve this type of problem. Here 3 inequality, here 2 inequality, so it is 4 inequality given here. So I will start with it, question number 10. okay, so let's see question number 10. What is given? Question number 10: 3x plus 4y. Question number 10 given 3x plus 4y less than is equal to 60, less than equal given less than equal 60. okay, this is number one inequality. So one by one all the inequality will write. Next given x plus 3x, x plus 3y, x plus 3y, x plus 3y less than equal to 30, less than equal to 30. This is number 2 inequality. Then number 3 given x greater than equal to 0, then given x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. These are the four inequality given: x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. okay, so now one more thing we'll see. This here 4 inequality given, this is 1 2, this is 3 4, but here I have not given any number. इसमें कोई number नहीं दिया, because ये जो x greater than 0 है और y greater than equal to 0 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरली जो क्वाड्रेंट मिला था क्लास, ये जब भी हम लोग ग्राफ में किया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट रूल, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या है? प्लस प्लस. दैट मीन्स इसमें सारा वैल्यू प्लस का आता है, ये मिला हुआ है. ठीक है, और ये जो है ये प्लस माइनस माइनस प्लस, लाइक दिस माइनस माइनस एंड ये प्लस माइनस. ओके, सो ना अभी देखो इसमें x ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव, एंड y ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स y का वैल्यू भी पॉजिटिव. तो दोनों पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मे बी इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन, ये जो x एक्सिस है, तो ये y. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. x इज इक्वल टू 0 लाइन ये है, x इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू 0. ओके, नाउ
एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, ये वाला क्वाड्रेंट है। तो जब भी ये जो इनइक्वलिटी है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, तो इसको अगर दिया रहेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। इसका रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये कंडीशन जो है ये क्या करते हैं, डायग्राम को ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट्रिक्ट कर देता है। मतलब एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होना पड़ेगा या इक्वल टू जीरो हो सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव, बट निगेटिव नहीं हो सकता है। वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो ये भी इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला लाइन, और पॉजिटिव मतलब वाई का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ में आएगा। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ये यहाँ में आएगा। या अगर इक्वल टू जीरो है तो वाई के लिए जीरो ये आता है और एक्स के लिए जीरो ये आता है। तो ये जो है ये जनरली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी ये कंडीशन दिया रहेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा करके सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम लोग ये इनइक्वलिटी का लाइन कंसीडर करेंगे तो ये एक्स एक्सिस आएगा, इसका इनइक्वलिटी का लाइन कंसीडर करेंगे तो ये वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है ये क्या करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इस टाइप का कंडीशन देने से इसके लिए एक्स्ट्रा करके करने का जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग का जो डायग्राम बनेगा, ये जो इनइक्वलिटी बन के जो रिजल्ट आएगा वो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है, बाकी वाला क्वाड्रेंट में जाना नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऑलवेज ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम हम लोग ऐसा नहीं ड्रॉ करेंगे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी लास्ट प्रॉब्लम्स में किया हुआ था उसमें हम लोग चारों क्वाड्रेंट को ड्रॉ करके फिर डायग्राम को ड्रॉ किया था। बट अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग को ओनली एक्स वाई एक्सिस को मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रॉ करना है। ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको ड्रॉ करने से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाने नहीं देगा सॉल्यूशंस को। इसका मतलब वही है कि एक्स का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाने नहीं देगा, ये कंडीशन। तो इसलिए जब भी जो भी डायग्राम बनेगा वो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जब भी जो कोई भी कंडीशन प्रॉब्लम में अगर ये कंडीशन दिया है तो मतलब तुमको ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ड्रॉ करके लिखना, डायग्राम को ड्रॉ करना है। और बेसिकली ये दोनों इनइक्वलिटी को ही ड्रॉ करना है। ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको एक्स्ट्रा करके करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों में जो होगा उसी को यहाँ में ड्रॉ कर देने से हो जाएगा। ओके, खाली हम लोग लिख देगा लास्ट में कि एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट और मे बी रेस्ट्रिक्ट द सॉल्यूशन रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो इसको हम लोग बाद में लिख देगा। तो अभी लेट्स सी हाउ टू डू द सॉल्यूशन। तो समझ में आया ना। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कभी भी दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसको ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है डायग्राम को, बाकी क्वाड्रेंट को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सॉल्व हम लोग खाली इनइक्वलिटी वन और इनइक्वलिटी टू और या कोई वन इनइक्वलिटी दिया रहता है तो उसके लिए करता है, इसको नहीं चाहिए। ये तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा करके कुछ भी नहीं करने का जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्या करना है, ये पहले जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में किया था, 6.2 में किया था, जैसे सेम टू सेम ऐसे फर्स्ट ये इनइक्वलिटी का लाइन कंसीडर करो। लेट द लाइन represent by inequality वन इज इनइक्वलिटी वन का अगर लाइन को कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, खाली हमें इक्वल साइन लगा देने से हो जाएगा। तो क्या आएगा 3x प्लस 3x क्या आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। ठीक है, और लाइन का जो इक्वेशन है उसका हम लोग नाम दे दिया ए। सपोज दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द लाइन रिप्रेजेंट बाय इनइक्वलिटी वन। ओके, एंड ये पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट से जाएगा, विच इज पासेस थ्रू, विच इज मतलब ये लाइन जो है ये कौन सा पॉइंट से जाएगा, विच इज पासिंग थ्रू मैंने ये बोला था, एक बार x को 0 लेने के लिए और एक बार y को 0 लेने के लिए। x और ये y, फर्स्ट में x को 0 ले लो और सेकंड में y को 0 ले लो। देखो क्या आता है, x को जब 0 लेंगे, x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पार्ट 0 बन जाएगा, तो ये 4 इस तरफ चला जाएगा तो 60/4 15, तो y का वैल्यू आ जाएगा
y का वैल्यू आ जाएगा 15। और जब y का वैल्यू 0 लेंगे, ये हमें y 0 लिया था, y जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इस तरफ चला जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 बिकम 20। ठीक है, तो मतलब कौन सा पॉइंट आया, 0,15, 0,15 एंड 20,0, 0,15 एंड 20,0। ओके, सो ये दोनों पॉइंट से पास होगा ये वाला लाइन। ओके, ना अभी सिमिलरली हम लोग ये लाइन को कंसिडर करते हैं, एंड सिमिलरली लाइन रिप्रेजेंट बाई लाइन रिप्रेजेंट बाई इनइक्वलिटी 2, क्या आएगा, x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये आया था a, ये लाइन a था, और ये लाइन हो जाएगा, इसका नाम दे दिया b। ओके, एंड विच इज पासेस थ्रू, which is passing through कौन सा पॉइंट आएगा, x और y, एक बार x को 0 लेना है और एक बार y को 0 लेना है। तो x जब 0 हो जाएगा तो ये 3 इस तरफ चला जाएगा, तो 30/3 बिकम 10, y का वैल्यू हो जाएगा 10। और जब y का वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30। तो ये पास कौन सा पॉइंट से हो रहा है, 0,10, 30, 0। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी लाइन दिया हो तो इस चीज़ को बना लेना है। अभी हमें 2 इनिक्वलिटी दिया है तो इसलिए 2 इनिक्वलिटी का 2 लाइन है। अगर ये हमें 3 इनिक्वलिटी दिया होता तो हम लोग और एक आता, लेकिन ये दोनों का करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तो मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका लाइन जो है एक्स एक्सिस बनेगा, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस बनेगा, सॉरी हमने अभी भी बोला था जो ये एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वाई को, वाई इज इक्वल टू वाई वाला एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो ये वाला लाइन है, और वाई इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन, मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन है, हाँ, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 मतलब ये वाला लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, मैंने थोड़ा देर पहले मैं उल्टा बोल दिया था, इसको y0 बोल दिया था, इसको बोला था x0, बट वो गलत है। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन होगा, ये वर्टिकल लाइन, और y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है ये वाला चीज़। ठीक है, तो अभी तो ये चीज़ को एक्स्ट्रा करके निकालने का जरूरत नहीं है दोनों को। अभी ये जितना भी दूसरा इनइक्वलिटी दिया है उसको निकाल लेना है। 2 इनइक्वलिटी है तो 2 को निकाला, अगर 3 होता तो ये हमें और एक आ जाता। ठीक है, तो अभी हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो नाउ डायग्राम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है ना। Okay, 1 second, we'll see. Diagram should be clear. Okay, so this is the diagram. This is x-axis and this is called y-axis. Okay, this is y-axis.
Okay, so now highest point you will see. What is the highest point here? 15, 20. x का वैल्यू हाइस्ट तो यहाँ में 20 दिखाई दे रहा है और यहाँ में x का वैल्यू हाइस्ट 30 दिखाई दे रहा है, 15, 15, तो मतलब 30 तक हम लोग को करना है ना, तो वी विल टेक 5 पर यूनिट इज 5. ओके, सो पर सेंटीमीटर को 5 यूनिट बोल के पकड़ेगा, तो ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ठीक है, यहाँ में साइड में लिख सकते हो कि पर सेंटीमीटर 5 यूनिट. ओके, सो देन 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये हो गया 5. तुम लोग अच्छे से पेन स्केल से ड्रॉ करना है इसको. 10, 15, 20, 25, ये हो गया 30. ओके ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ. तो अभी फर्स्ट पॉइंट को हम लोग पुट कर लेते हैं. कौन सा पॉइंट है? सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,15. तो ये है 0,15, तो मतलब ये वाला पॉइंट है 0,15. ओके, नेक्स्ट है 20,0. 20 x का वैल्यू 20 और y 0. ये है 20,0. x का वैल्यू 20 और y मतलब हाइट 0 है, तो इसलिए एकदम यहाँ में आया. और इसमें क्या है? x 0 है, मतलब लेंथ 0 है, और हाइट कितना है? 15, तो हाइट 15 में आया. ठीक है, तो अब ये दोनों ज्वाइन करके एक लाइन को ड्रॉ करना है ना. ओके, तो इसका डॉटेड लाइन होगा ना डार्क लाइन होगा? देख लो, ये इक्वल साइन है यहाँ में, तो मतलब डार्क लाइन होगा, डॉटेड लाइन नहीं होगा. डार्क लाइन ड्रॉ करना है ये दोनों को ज्वाइन करके. अच्छे से पेंसिल से स्केल से इसको ड्रॉ करना. तो ये हो गया लाइन ए. दिस इज लाइन ए. लाइन ए को हम लोग ड्रॉ कर लिए. ओके, सो नाउ पॉइंट कौन सा है? अभी सेकंड लाइन के लिए 0,10. तो 0 x का वैल्यू 0 और y मतलब हाइट 10, तो ये वाला होगा 10. ओके, एंड देन 30,0. 30,0 x का वैल्यू 30, y 0, तो ये है x 30 और y 0. ठीक है, अभी ये दोनों को ड्रॉ करना अच्छे से. ठीक है, तो इसको अच्छे से, इसको भी इक्वल साइन है यहाँ में, तो इट शुड बी डार्क लाइन. तो वी विल ट्राई टू मेक ए डार्क लाइन. इसको स्केल से so this is the line. This is line B. Okay, this is line B. दोनों लाइन को हम लोग एक साइड में ड्रॉ कर लिए. ओके, तो अच्छे से ड्रॉ करना. ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का. हम लोग ये दोनों ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं. ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से, ये जो ए और बी है, इसको सॉल्व करने से ये ए और बी को सॉल्व करने से ये वाला पॉइंट आ जाएगा. ये अभी नहीं चाहिए. सेकेंड ईयर में जब हम लोग LPP करेंगे तब ये वाला चीज़ भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी नहीं चाहिए. अभी हम लोग इसको ड्रॉ कर लिया. अभी हम लोग को चेक करना है कि कौन सा शेडेड रीजन है. ठीक है, तो शेडिंग रीजन जो हम लोग को निकालना है वो कॉमन शेडेड रीजन निकालना होगा. मतलब दोनों इनइक्वलिटी के लिए, ये इनइक्वलिटी के लिए एंड ये इनइक्वलिटी के लिए, दोनों का कॉमन शेडेड रीजन भी निकालने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे. तो हम लोग को बोला है कि शेडिंग रीजन निकालने के लिए. ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस में हम लोग को एक पॉइंट चूज़ करना है. जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग किया था, एक पॉइंट को चूज़ करना है.
that point should be on the plane but not on the line. Okay, सो जनरली हम लोग 0 0 को लिया था. अगर 0 0 लाइन में नहीं है तो हम लोग 0 0 को ले सकते हैं, बट 0 0 अगर लाइन में है तो 0 0 को नहीं ले सकते. तो कोई दूसरा पॉइंट x, 1,0 व 0,1 ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं. ठीक है, बट अभी देख लो यहाँ में कि 0,0 जो है वो लाइन में है कि नहीं है. ठीक है, सो सी इन द डायग्राम 0,0 मतलब ये वाला पॉइंट है 0,0. तो कोई ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, तो दोनों लाइन में ही 0,0 पॉइंट तो नहीं है. ये लाइन अगर ऐसा जाता तो ये 0,0 यहाँ में आ जाता. अगर लाइन ऐसा जाता तो हम लोग ये वाला पॉइंट को नहीं ले सकते. अगर लाइन ऐसा बीच में से गया होता, देख लो मैं बोल देता हूँ कि लाइन अगर ऐसा करके अगर गया होता, अगर ऐसा करके लाइन गया था तो हम लोग ये वाला पॉइंट को नहीं ले सकता था. ठीक है, बट अभी हम लोग का लाइन जो है ऐसा नहीं गया, ऐसा गया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग 0 0 को ले सकते हैं. तो अभी कंसिडर करो लेट now 0,0 डायरेक्ट लिख देते हो. पुटिंग 0,0 को हम लोग डायरेक्ट पुट कर देगा यहाँ में. ना पुटिंग जो पहले का प्रोसेस है वही है. सो पुटिंग 0,0 इन 1 and 2 इनइक्वलिटी 1 and 2. तो ये इनइक्वलिटी 1 and 2 में पुट करके देखना है अभी 0 0 को. ठीक है, ए और बी में नहीं, 1 and 2 में पुट करके देखो 0,0 का. तो 1 में फर्स्ट हम लोग 1 में पुट करेगा. ये है 1, तो ये है क्या 3x + 4y. तो 3x का वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर दो, प्लस 4y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 0 लेस देन इज इक्वल टू 60. ठीक है, तो अभी देख लो ये क्या हो रहा है, ये तो 0 आ रहा है और इस तरफ आ जाएगा 60, 0 लेस देन 60. ठीक है, कुछ को ये डाउट हो रहा है. कुछ स्टूडेंट लास्ट क्लास में मुझे पूछा था फ़ोन करके कि प्रॉब्लम यहाँ में 2 सिंबल है, एक तो लेस देन है और एक इक्वल है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि 0 तो 60 से लेस देन है, ये तो ट्रू है. 60 से 0 जो है 60 से लेस देन है, ये ट्रू है, बट 0 60 का इक्वल तो नहीं हो सकता है. तो 0 = 16 तो नहीं हो सकता है. तो ये एक केस में फॉल्स आ रहा है, एक केस में ट्रू आ रहा है. तो कुछ का कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम लोग कौन सा लें, लेकिन ऐसा दोनों कंडीशन देखने का ज़रूरत नहीं है. किसी एक अगर ट्रू हो गया तो हम लोग उसको बोल देंगे ट्रू. ठीक है, फॉल्स होने के लिए दोनों में ही फॉल्स होना पड़ेगा. समझ में आया ना, कोई एक कंडीशन में ट्रू होने से ही हो जाएगा. क्योंकि देखो अगर 0 60 से छोटा है तो फिर 0 60 के साथ इक्वल कैसे होगा, ऐसे तो नॉट पॉसिबल. कोई भी नंबर अगर किसी भी और एक नंबर से छोटा है तो उसके साथ इक्वल तो नहीं हो सकते. तो एट ए टाइम 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई 2 लेस देन 3. ठीक है, 2 फिर = 3 भी तो नहीं हो सकता है. तो एट ए टाइम 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो आइदर 2 अगर लेस देन 3 हुआ तब भी ये ट्रू हो जाएगा. अगर 2 = 3 हुआ, मतलब सपोज x लिया, x अगर लेस देन 3 हुआ तब भी ट्रू हो जाएगा, x अगर = 3 हुआ तब भी ट्रू हो जाएगा. दोनों में से कोई एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ में एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 लेस देन 60 है, तो ये ट्रू है. तो विच इज़ ट्रू. तो नंबर 1 के लिए तो ट्रू आ गया. अभी 2 के लिए देखो, 2 इम्प्लाइज क्या है, ये x + 3y लेस देन इज इक्वल टू 30. तो x का जगह में 0 पुट कर देना है, प्लस 3 इन प्लेस ऑफ y क्या है 0 लेस देन इज इक्वल टू 30. ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 30. ठीक है, तो ये भी ट्रू है, 0 30 से छोटा है, तो विच इज़ ट्रू. ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. तो हम लोग अभी क्या बोल सकते हैं कि 0 0 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो मतलब 0 0 ये वाला है. तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था, ये वाला था ए, और ये है बी. तो एक एक केस में अभी देखो 0 0 किस तरफ सेटिस्फाई, 0 0 इसको ट्रू आ रहा है. 0 0 पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में 0 0 पुट करने के बाद ट्रू आ रहा है. तो मतलब किसका तरफ शेडिंग करना है, इक्वेशन नंबर 1 में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको किस तरफ शेडिंग करना है, 0 0 की तरफ, क्योंकि 0 0 पुट करने के बाद ट्रू आया. अगर फॉल्स आता तो हम लोग उल्टा साइड में शेडिंग करता. बट अभी ये देखो ये जो लाइन है ये इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है प्लेन को. एक पार्ट तो ये वाला है और ये है लोअर पार्ट. ठीक है, तो अभी 0 0 जिस तरफ है उस तरफ शेडिंग करना है, क्योंकि ट्रू आ रहा है. फॉल्स आने से जिस तरफ 0 0 नहीं है उस तरफ शेडिंग करना है. बट यहाँ में 0 0 ट्रू आ रहा है पुट करने के बाद, तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेडिंग करना है. तो ये लाइन का 0 0 किस तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो इस तरफ शेडिंग आएगा इसका.
ठीक है। तो अभी हम लोग नहीं करेगा, थोड़ा देर अभी नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, दोनों का कॉमन रीजन को हम लोग सेट करेगा। तो अभी देख लो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट को भी नेक्स्ट इनइक्वालिटी में भी वही है कि 0 0 जो पुट किया तो ये भी ट्रू आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन जो है ये है बी, तो ये वाला लाइन है, ये जो है ये है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तब इसमें जब 0 0 पुट किया ये इनइक्वालिटी में, तो ये भी 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये इनइक्वालिटी भी किस तरफ है, ये लाइन का, ये लाइन दो पार्ट कर रहा है प्लेन को, एक तो इस तरफ है और एक दिस पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। बट किस तरफ 0 0 है, एज 0 0 पुट करने के बाद ये ट्रू आया, तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड करना है। तो ये लाइन का शेडिंग कहाँ में आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है, देख लो। फर्स्ट इनइक्वालिटी कौन सा था, फर्स्ट लाइन का जो शेडिंग था, ये जो फर्स्ट लाइन है इसका शेडिंग मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट लाइन का शेडिंग है, फर्स्ट लाइन का शेडिंग ये था, इस तरफ था, ये था फर्स्ट लाइन का शेडिंग, ये था फर्स्ट लाइन का शेडिंग, ठीक है। अभी सेकंड लाइन का शेडिंग, सेकंड लाइन का शेडिंग कौन सा है, सेकंड लाइन का शेडिंग भी 0 0 की तरफ है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस तरफ तो दूसरा पार्ट हो जाएगा उस तरफ, तो हम लोग को इस तरफ शेडिंग करना है, तो ये लाइन से स्टार्ट होगा। तो इसका शेडिंग ऐसा आएगा सेकंड लाइन का, जहाँ से सेकंड लाइन है वहाँ से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, देख लो अच्छे से। ये सेकंड लाइन का, ठीक है। तो अभी हमें कॉमन कौन सा है, देखो ग्रीन और ये पर्पल, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू और पर्पल, कौन सा रीजन में, देखो दोनों शेडिंग दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन एंड पर्पल दोनों है। ये वाला पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ में ओनली ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ में ओनली ब्लू है, और ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ में ओनली पर्पल है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए कॉमन, दोनों का कॉमन शेडेड कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों का कॉमन शेडेड रीजन है, ये वाला। देखो यहाँ में ब्लू और रेड दोनों दिखाई दे रहे हैं, ब्लू और पर्पल दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा हम लोग का लिक्विड शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो दोनों का कॉमन, ये जो कॉमन शेडेड रीजन है यही हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। एंड यहाँ में डार्क लाइन है, तो डार्क लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि पॉइंट्स, डार्क लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि लाइन का जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ में होगा, ठीक है। अगर डॉटेड लाइन होता तो हम लोग बोलता कि लाइन का जो पॉइंट्स है वो ये सॉल्यूशन रीजन में, ये जो शेडेड रीजन है यहाँ में नहीं आएगा। बट यहाँ में डार्क लाइन है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइन का जो पॉइंट है, ये जो येलो लाइन में जितना भी पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, येलो लाइन में जितना भी पॉइंट्स है ये सारा भी यहाँ में होगा। मतलब ये वाला लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स है, ये लाइन में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, ये भी सॉल्यूशन रीजन में होगा क्योंकि यहाँ में डार्क लाइन है, इक्वल साइन है। अगर इक्वल साइन नहीं होता तो हम लोग इधर डॉटेड लाइन देता, ठीक है। एज डार्क लाइन है तो ये वाला पॉइंट भी ये सॉल्यूशन रीजन में होगा, ये वाइट रीजन में होगा, और ये वाला लाइन का भी, ये वाला लाइन का भी ये सॉल्यूशन रीजन में होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन रीजन। इसको हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, पर फिजिबल रीजन हम लोग को अभी नहीं चाहिए, ये जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेगा तब उसमें आएगा ये सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन मिलेगा। तो अभी ये हो जाएगा हम लोग का, ये जो वाइट रीजन है ये हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन, ओके, कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो इस ये जो कॉमन शेडेड रीजन है इसी को हम लोग बोलते हैं इसका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। और इसका डायग्राम जो है देखो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, तो मतलब ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 क्या करता है, ये डायग्राम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख देते हैं। जनरली अदरवाइज हम लोग इसको इस तरफ भी ड्रॉ करता है, इसका शेडिंग रीजन इस तरफ भी आना चाहिए था जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग किया था, बट इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अभी ये हो गया डायग्राम। तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है देख लो, मैं बोल देता हूँ कि उसी के तरीके से लिखना है कि सिंस 0,0 सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी, देयरफॉर देखो ये चीज़ मैं दिखाई देता हूँ बुक में कैसा दिया हुआ है। चीज़ दिखाई देता है, ये लाइन लिखना है कि सिंस, ये देख लो बुक में भी ऐसा आया, ऐसा टाइप का आया। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, दूसरा क्वेश्चन किया था, लेकिन ऐसा टाइप का हम लोग का भी आया, ठीक है। तो अभी ये आया था हम लोग का सॉल्यूशन।
तो अभी देखो कैसे लिखना है फाइनल रिजल्ट। ये सिंस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी था हम लोग का। तो इसके बारे में लिखना है कि सिंस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, comma every point in the shaded region, every point in the every point in the shaded region in the first quadrant represents a solution of the given system of inequality। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सो सिंस एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट, रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, उसके बाहर नहीं आएगा। तो लिखना है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, जीरो, ये जो कंडीशन है रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट इन द शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। तो ये लाइन को लिख देने से हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट लिख देना कि सिंस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो गिवन, सो देयरफॉर एवरी पॉइंट, ये गिवन बोल के लिख देना, सिंस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो गिवन, सो देयरफॉर एवरी पॉइंट इन द शेडेड रीजन, मतलब ये वाला शेडेड रीजन का बोल कर रहे हैं, एवरी पॉइंट इन द शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरी पॉइंट इन द शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो जितना भी पॉइंट है ये शेडेड रीजन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी पॉइंट है शेडेड रीजन में, तो ये सारा पॉइंट गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी का। सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी मतलब एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी देने से उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। जैसे कि हमें 2 दिया है तो इसको भी सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बोलेंगे, हमें 4 दिया हुआ है तो ये भी सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी होगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी देने से उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन में भी मिला है हम लोग को, एक से ज़्यादा इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली एक से ज़्यादा अगर इनइक्वलिटी दिया है देन ऑल्सो इट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट ऐसा लाइन को लिख देना कि सिंस x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 given, so therefore every point in the shaded region in the first quadrant represents a solution of the given system of inequality। and यहाँ में और एक चीज़ लगा सकते हो कि and the dark line represent that the points including the solution region। ठीक है, और अदरवाइज ऐसा एक नाम भी दे सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ में जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, ये जो यहाँ में है, यहाँ में एक नाम भी ऐसे दे सकते हो कि ये है ओ, सपोज इसका नाम दे दिया मैंने ओ, और ये हो जाएगा ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि द शेडेड रीजन ओ ए बी सी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरी पॉइंट ऑफ द शेडेड रीजन ओ ए बी सी इज रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। तो ऐसा नाम देके भी लिख सकते हो। ओके, द शेडेड रीजन ओ ए बी सी ओ रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन ऑफ द, रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, तो दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा रहेगा क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए जनरली एवरी ईयर एक पूछता है, 4 या 5 मार्क्स के लिए भी कुछ कुछ जगह में पूछ देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड ईयर में ये वाला चीज़ ही हम लोग को चाहिए, जिसका और बेस करके 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मतलब ये वाला डायग्राम के लिए 3 मार्क होता है, और 3 मार्क्स, और नेक्स्ट वाला ये 3 मार्क्स ये डायग्राम के लिए, और 3 मार्क्स जो है उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसके लिए ओवरऑल 6 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर का है, और फर्स्ट ईयर में ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। सो समझ में आया ना। तो अगर यहाँ में 4-5 इनइक्वलिटी भी दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दिया रहेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए तो कुछ नहीं करना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डायग्राम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, और बाकी का जो दिया रहेगा 2-3 इनइक्वलिटी उसको सेपरेटली करके ऐसा लाइन निकाल लेना है, और उसका पॉइंट निकाल लेना है। फिर फर्स्ट उसका लाइन को ड्रॉ करना है, फिर हम लोग को 0-0 इधर 0-0 लेना है। अगर लाइन बीच में से गया तो 0-0 नहीं लेकर हम लोग 1,0 को भी ले सकते हैं, बस 0,1 को भी, बस 0,5, 0,10 ये लाइन में से किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। ये वाला लाइन से भी किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, लेके हमें पुट करना होगा। ठीक है, फिर चेक करना होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर मैं एकदम लास्ट का एक क्वेश्चन को दिखा देता हूँ।
सॉरी यहाँ में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं दिखाने से मैं शॉर्टली दिखा देता हूँ ये वाला चीज़ को, लास्ट क्वेश्चन को। इनइक्वलिटी नंबर ये वाला जो है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टली दिखा देता हूँ। एक्स रिप्रेजेंटेशन जो है अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जैसे किया ऐसे करना, तो मैं जस्ट यहाँ में डायग्राम को दिखा देता हूँ शॉर्टली, ठीक है। मैं उतना रिप्रेजेंटेशन यहाँ में नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो क्लास, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ में थोड़ा दिखा देता हूँ डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे टाइप का आएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पहले का जैसे कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 10, x + y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, x - y लेस देन इक्वल टू 0, एंड इसमें दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको तो नंबर नहीं देना, ये तो रेस्ट्रिक्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये 3 इनइक्वलिटी का नंबर देना है 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना था, लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 इनइक्वलिटी है। तो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट इनइक्वलिटी का लाइन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम लोग लिख के अच्छे से लिखना, वैसे मैं नहीं लिख रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन को, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। तो ये हो गया लाइन ए। तो ये कौन सा पॉइंट से पास होगा, एक्स का वैल्यू जब 0 लेंगे, डायग्राम में से बॉक्स बना के कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स का वैल्यू 0 होने से वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो 5 होगा। और एक पॉइंट आएगा जब हम लोग वाई का वैल्यू 0 लेंगे, वाई का वैल्यू अगर 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ठीक है। एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट नंबर 2 के लिए ये x + y, x + y इज इक्वल टू क्या है 1, तो ये हो जाएगा नंबर बी। अभी इसमें जो पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, और y का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू अगर 0 पुट किया, y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अभी थर्ड लाइन जो है x - y = 0, तो ये हो गया लाइन सी, ठीक है। तो इसमें से देखो ये यहाँ में अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लिया तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू 0 लेने से भी x का वैल्यू 0 आ जाएगा, बिकॉज इस माइनस दिया है ना, y को तुम राइट साइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, x = y, मतलब x का वैल्यू जो लोगे y का वैल्यू वही आएगा। तो x का वैल्यू अगर 0 लिया तो y का वैल्यू भी 0 ही आएगा। x का वैल्यू मैं और एक ले लेता हूँ, सपोज x का वैल्यू मैंने 5 ले लिया तो y का वैल्यू भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीनों लाइन। अभी मैं इसका डायग्राम में शॉर्टली एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट खाली ड्रॉ करना है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ये कंडीशन को दिया हुआ है, तो इसलिए ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना है। तो ये एक्स एक्सिस और ये है गया वाई एक्सिस। तो 5 तक हाईएस्ट नंबर 5 10 है, 10 ना। तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर को 2 लेके पकड़ लिया, 6 8 1 करके भी पकड़ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट जल्दी करने के लिए ये 2 लिखा है, 10, ओके। सो यहाँ में लिख देना पर सेंटीमीटर पर यूनिट पर सेंटीमीटर 2 यूनिट्स, ओके। सो अभी फर्स्ट जो है फर्स्ट डायग्राम क्या है 0,5 0,5, ये 0,55 यहाँ में होगा। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 5, तो 5 तो ये दोनों का 4 और 6 का बीच में होगा, तो ये हो गया 0,5 और ये 10,0। एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 0, तो इसको ज्वाइन कर दो। डॉटेड लाइन नहीं होगा, डार्क लाइन होगा, इक्वल साइन है, तो ये दोनों को ज्वाइन करके ये हो गया डार्क लाइन नंबर ए, ये हो गया ए, ठीक है। नंबर बी को ड्रॉ करो 0,1 0,1 0,1 तो ये हमें आएगा, का वैल्यू 1 दिया हुआ, तो ये होगा 0,1 पॉइंट और एक पॉइंट है 1,0, तो 1,0 पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। तो ये भी डार्क लाइन होगा, इक्वल साइन है, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया लाइन बी। तो ये जो है ये हो जाएगा लाइन बी, ठीक है। अभी लाइन सी क्या है 0 0 0 0 मतलब ये वाला पॉइंट है, 0 0 मतलब ये वाला पॉइंट है,
और 5,5, 5 एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू भी 5, कौन सा पॉइंट आएगा 5, ये है 5, 5,5, ये 5,5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,5, ठीक है। तो अभी इसको ज्वाइन कर दो तो ये हो जाएगा ये वाला लाइन, ये हो गया सी, लाइन सी, ठीक है। तो अभी इसको मैंने क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले का जैसे ही है, यहाँ में 3 लाइन है। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या हमें यहाँ में जो हम लोग अभी 0 0 को लेता था, अभी हमें 0 0 को ले पाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो 0 0 से पास हो रहा है। बट हम लोग को एक ऐसा पॉइंट लेना है जो ऑन द लाइन में नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइन में नहीं होना चाहिए, ए बी सी ऐसा कोई भी लाइन में नहीं होना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट प्लेन में होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्लेन में होना चाहिए, बट ये कोई भी तीनों लाइन में से कोई भी लाइन में नहीं होना चाहिए। बट यहाँ में अभी देखो हम लोग जनरली 0 0 लिया था लास्ट, अभी तक जितना प्रॉब्लम किया था, बट यहाँ में 0 0 को नहीं ले पाएगा, बिकॉज 0 0 जो है ये वाला पॉइंट है 0, 0, तो 0, 0 से अभी ये लाइन सी जा रहा है, तो अभी हम लोग ये पॉइंट को नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 1, 0, 1, और 1, 0, ये जो पॉइंट है ये क्या है 1, 0 और ये पॉइंट है 0, 1, तो ये दोनों पॉइंट को भी नहीं ले सकते, बिकॉज ये दोनों पॉइंट में से ये वाला लाइन पास हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेगा, कौन सा पॉइंट को लेगा, तो कोई दूसरा पॉइंट को ले लेते हैं। सपोज 0,2 को ले सकते हैं तुम, 0,2, ठीक है। तो 0,2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, 1 इम्प्लाइज पुटिंग 0 0, लिख लेना पुटिंग 0 0, 0,2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स का जगह में 0 पुट करो और वाई का जगह में कितना 2 पुट करना है, तो 2 2 जाए 4, 4 लेस देन इज इक्वल टू 10, ये तो ट्रू है, ठीक है। अभी नंबर 2 में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, नंबर 2 में अगर 0,2 पुट कर दिया तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 2, तो 0 + 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो फॉल्स है, 2 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 2 1 के साथ इक्वल भी नहीं हो सकता, 2 1 से बड़ा, सॉरी 2 1 से बड़ा है, ये करेक्ट है, 2 1 से तो बड़ा है, तो ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 1 के साथ इक्वल तो नहीं हो सकता, बट 2 1 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू आ जाएगा, दोनों ही ट्रू, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन सिंबल है, तो ये करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 4 लेस देन 10 है और 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये दोनों ट्रू है। अभी नंबर 3 में जब पुट करोगे 0,2, नंबर 3 में एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और राइट साइड में क्या है लेस देन इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को -2 लेस देन इज इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू है, बिकॉज एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2 है, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट किया और 0 - 2 इज -2 0 से छोटा है, ये भी करेक्ट है, तो तीनों ही ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट 0,2, 0,2 पॉइंट कौन सा है ये, ठीक है। तो मतलब 0,2 पॉइंट जिस तरफ भी है उसी तरफ शेडिंग होगा तीनों लाइन का, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन कौन सा था, ये वाला लाइन, ये फर्स्ट लाइन था, तो फर्स्ट लाइन का शेडिंग किस तरफ होगा, जिस तरफ 0,2 होगा, तो इसका शेडिंग तो इस तरफ आएगा, इसका शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट लाइन का 0,2 के तरफ, ठीक है। अभी सेकंड लाइन कौन सा था, ये वाला, ये छोटा वाला लाइन, तो ये जो है ये 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है इनइक्वालिटी, एक तो ये छोटा वाला पोर्शन और एक ये इस साइड में, तो 0,2 तो इस साइड में गिर रहा है, तो इसका शेडिंग जो है, इसका शेडिंग इस तरफ होगा, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर का शेडिंग दे रहा हूँ, तुम लोग डिफरेंट टाइप का शेडिंग देना, कभी कार्व कभी स्ट्रेट लाइन ऐसा करके देना, डिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसा करके आएगा, ठीक है, ये इतना दूर चलता जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वाला ये लाइन का इस तरफ और ये स्मॉल पोर्शन नहीं होगा, बिकॉज 0,2 इस तरफ होता है, इस तरफ इसके लाइन का ये पार्ट में है 2,0, और सॉरी ये तो मैंने 0,2 में कर रहा हूँ, बट 0,2 था ना, उल्टा हो गया, रुको, ये तो शेडिंग पूरा उल्टा हो गया, 0,2 ही था, 2,0 में पकड़ रहा हूँ, लेकिन ये 2,0 नहीं, ये तो 0,2, अभी देख लो 0,2 ये वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ में मैंने गलती किया था, 0,2 ये वाला पॉइंट नहीं है ना, 0,2 एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 2 हम लोग लिया था ना, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है।
तो अभी ये वाला पॉइंट जिस तरफ होगा उस तरफ शेडिंग करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का जो शेडिंग है, फर्स्ट लाइन तो ये है, तो ये दो पार्ट कर रहा है, एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो इस तरफ होगा इसका शेडिंग, फर्स्ट लाइन का, लाइन ए का शेडिंग इस तरफ होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन का। अभी सेकंड लाइन ये वाला है, सेकंड लाइन ये वाला है। तो इसके लिए जीरो, ये स्मॉल पार्ट नहीं, ये 0,2 ये वाला पॉइंट है। तो मतलब ये लाइन का नीचे वाला पोर्शन नहीं, ये लाइन का ऊपर वाला पोर्शन सेट करना है। तो इसका भी ये वाला पोर्शन ही आएगा, ये पूरा इस तरफ आएगा, ये पूरा आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा। अभी थर्ड वाला लाइन कौन सा है, ये वाला है थर्ड लाइन, ठीक है। ये जो बीच में से गया ये है थर्ड लाइन। अभी थर्ड लाइन का किस तरफ शेडिंग होगा, 0,2, थर्ड लाइन भी ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0,2 कौन सा है, 0,2 ये है 0,2। तो ये लाइन जो है, ये लाइन इसको बीच में तोड़ रहा है दो पार्ट में, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो कौन सा पार्ट में शेडिंग होगा, क्योंकि 0,2 इस तरफ है तो इस तरफ शेडिंग होगा इसका, ठीक है। तो ये लाइन का शेडिंग इस तरफ होगा, ठीक है। तो अभी देखो कौन सा पोर्शन है जहाँ में तीनों शेडिंग गिर रहा है, वो है ये वाला पोर्शन। इसमें देखो यहाँ में ब्लू भी है, वाइट भी है और रेड भी है। तो ये जो है ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो ये लाइन में क्यों ड्रॉ किया ये इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ में ये वाला केस था, ये हमें 0,0 से पास हो रहे, तो हम लोग 0,0 को नहीं ले सकते। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हो जाएगा इसका शेडेड रीजन, ठीक है। तो मैं जो सॉल्यूशन करके दिखा दिया, अभी फाइनल रिप्रेजेंटेशन करके लिखना, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सरसाइज का अभी सारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी कर पाओगे, सब क्वेश्चन सेम ही टाइप का होगा, सारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। बिकॉज इसके बाद मिसलेनियस है, तो अभी नेक्स्ट मिसलेनियस में जाना पड़ेगा। मिसलेनियस में से भी एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, मिसलेनियस में से एक 6 मार्क का आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मिसलेनियस करूँगा। तो इसके लिए मुझे उससे पहले ये वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके देना। और स्पेशली आज के लिए अटेंडेंस के लिए आज मुझे क्वेश्चन नंबर 14 को करके भेजना, क्वेश्चन नंबर 14 आज। और बाकी सारा क्वेश्चन ये वीक में करना और नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे सेंड करना, ठीक है। और ये ओनली फॉर टुडे, दिस इज़ फॉर अटेंडेंस, ओके। तो ये क्वेश्चन को आज मुझे विद डायग्राम प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, ओके। सो तो आई होप ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका प्रैक्टिकल, ये तो ग्राफिकल हो गया, तो ग्राफिकल पार्ट हम लोग को आ गया कि इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, तो ये सेंटीग्रेड डिग्री यूज़ करके किस तरीके से प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे, ओके ओके। सो उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे JEE से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी, अगर क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके।